ناظرین السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ سرکاری اسکولز تلنگانہ کی تعمیر نو میں اہم رول ادا کریں۔ ڈی ایس سی 2024 کامیاب ٹیچرز کو وزیر اعلیٰ نے تقررنامے حوالے کیے۔ حکومت کا گلا پکڑنے تک اسی طرح دھوکہ دے گی، بہبودی پروگراموں کے لیے رقم نہیں، موسی ندی کے لیے فنڈز موجود، کے ٹی آر کا الزام۔ کانگریس ہریانہ میں بی جے پی کی 10 سالہ ناقص حکمرانی کا فائدہ نہیں اٹھا پائی، شکست کے لیے کون ذمہ دار؟ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا رد عمل۔ تریپورہ میں مسجد اور اقلیتوں کے مکانات پر حملوں کی مذمت۔ مبینہ بدعنوان بیوی کی رشوت خوری کو شوہر نے کیا بے نقاب۔ منی کنڈا میونسپلٹی کی ڈی کے گھر میں چھپی رقم کا ویڈیو شوہر نے کیا جاری۔ ملاوٹی چائے کی پتی کی تیاری کا پردہ فاش، بھاری مقدار میں ملاوٹی اشیاء ضبط، تلنگانہ فوڈ سیفٹی کمشنریٹ کی کارروائی۔ چندانگر میں ایک شخص مشتبہ حالت میں فوت، جسم پر ضربات، اور چادر گھاٹ پل سے گر کر ایک شخص ہلاک۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ کیو میکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th، 6th، 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیو میکس کوہینور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر، ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر، اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ اب ہوگی بچت پیسوں کی، اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کی تعمیر نو میں سرکاری اسکول اہم رول ادا کریں۔
एलबी स्टेडियम में डीएससी के कामयाब उम्मीदवारों के तोहरनामे हवाले किए गए। वजीर आला ने कहा 90 दिनों में 30,000 मुलाजमतों के तकर्रनामे हवाले किए गए हैं। डीएससी एलामिया जारी करने के 65 दिनों में 10,000 से ज्यादा असातिज़ा को तकर्रुनामे हवाले किए गए हैं। वजीर आला ने कहा कांग्रेस हुकूमत आने के बाद महकमे तालीम में अहम फैसले किए हैं। 34,000 टीचर्स के तबादले, 21,000 टीचर्स को तरक्की दी गई। आप लोगों की खुशी देखकर बाज लोगों की आंखों में जलन हो रही है। 10 साल में केसीआर को गरीब आवाम के लिए मुलाजमत करने की सोच नहीं थी। वो लोग मशवरा नहीं देंगे, सिर्फ रुकावट पैदा करेंगे। 10 साल हुकूमत करने वाले 10 महीनों में गिराने की कोशिश में हैं। तेलंगाना के बच्चों को मेयारी तालीम फराहम करने की जिम्मेदारी टीचर्स की है। तेलंगाना के 30,000 स्कूल में 24 लाख तलबा हासिल कर रहे हैं। वजीर आला ने कहा 11 अक्टूबर से इंटीग्रेटेड स्कूल के तामीरी कामों का आगाज होगा। सरकारी स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, ये बात फख्र के साथ कहने का माहौल पैदा करें। यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के जरिए रोजगार फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। बहुत जल्द गच्चीबौली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तामीरनों में आप लोग मेहनत करें। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने एससी जुमराबंदी पर 60 दिनों में वन मैन कमीशन रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। सेक्रेटरीट में एससी जुमराबंदी की काबीनी ज़ैली कमेटी का इजलास मुनक्किद किया। इजलास में वजीर आला ने एससी जुमराबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अमल करने के लिए ज़रूरी इक़दाम की ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि ज़ैली कमेटी के सिफारिशात के मुताबिक पेशरफ करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि वन मैन कमीशन की रिपोर्ट आने तक नए मुलाजमतों के लिए एलामिया जारी न करने का हुकूमत ने फैसला किया है। 2011 मरदमशुमारी का पैमाना होगा। 24 घंटे के अंदर कमीशन के क़याम के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत दी है। किसी भी हालात में वन मैन कमीशन की रिपोर्ट तयन करदा वक्त पर पेश करने के इक़दाम किए जाएं। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने गांधी भवन में अवाम से मुलाकात की। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक पूनम प्रभाकर ने अवाम से मुलाकात करते हुए शिकायत की समाअत की। चारशंबे के दिन जुमला 179 शिकायतें मौसूल हुई, जिनमें कलेक्टर से की गई 22 दरखास्तें, महकमे ट्रांसपोर्ट से मुतालिक 42 और दीगर वज़रा से की गई 115 शिकायतें थीं। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने कहा राशन कार्ड डिजिटल कार्ड का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। मुलाजमतों पर तकर्रुरात तेजी से जारी हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए सबसे मिलने का मौका मिला। अवामी मसाइल की यकसुई के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है। हुकूमत को तश्कील पाए 10 माह भी नहीं गुजरे, हुकूमत पर तनकीदें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ गांधी भवन में ही नहीं, जिले के अंदर में होने वाले प्रोग्राम में वज़रा शिरकत करें तो बेहतर रहेगा। हुकूमत के मामलात फार्म हाउस में रहकर नहीं, सेक्रेटेरिएट से हल कर रहे हैं। ये अवामी हुकूमत है। पूनम प्रभाकर ने कहा बीआरएस पार्टी जिम्मेदार अपोजिशन का रोल अदा करे, तनकीदें और झूठा प्रोपेगेंडा बंद करे। दूसरी तरफ बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा हथेली में जन्नत दिखाकर कांग्रेस पार्टी ने इख्तिदार हासिल किया है। तेलंगाना भवन में कांग्रेस के अक़लियती लीडर मोहम्मद अलाउद्दीन पटेल अपने हामियों के साथ बीआरएस पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर केटीआर ने खिताब करते हुए कहा कि 10 माह में कांग्रेस की हुकूमत ने तमाम तबकात को नाराज किया। इंतखाबात में अवाम से जो वादे किए उसे फरामोश किया गया। अगर कोई सवाल करे तो हुकूमत का एक ही जवाब है, रकम नहीं है। लेकिन मूसा नदी के लिए 1,50,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए रकम है। बहबूदी प्रोग्राम के लिए रकम खर्च करेंगे तो कमीशन हासिल नहीं होगा। केटीआर ने कहा कि जब तक गला पकड़कर नहीं पूछेगा, कांग्रेस पार्टी इसी तरह धोखा देती रहेगी। कुछ भी मसला है तो कलेक्टर से रुजू होने का मशवरा दिया जा रहा है। तेलंगाना, कर्नाटक में दी गई गारंटियों को देखकर हरियाणा के अवाम ने भरोसा नहीं किया और कांग्रेस को सबक सिखाया। राहुल गांधी को अक्ल आनी चाहिए। अवाम से किए गए वादे पूरा न करने पर अवाम सबक सिखाते हैं। रियासत का हर शहरी केसीआर को याद कर रहा है। उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म को जारी रखते हुए, इंसानियत को बरकरार रखते हुए मुस्तकबिल में सियासत करेंगे।
सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हरियाणा के असम्बली इंतखाबात के नताज पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए सवाल किया कि बीजेपी की इस कामयाबी के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, मजलिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसके इंतखाब लड़ने से बीजेपी को फ़ायदा होता है। हरियाणा के असम्बली इंतखाबात में मजलिस ने हिस्सा नहीं लिया, फिर बीजेपी को कामयाबी कैसे मिली। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, 10 साल की बीजेपी की नाक़िस हुक्मरानी का कांग्रेस फायदा नहीं उठा पाई। उन्होंने कहा, कांग्रेस के दाखिली इख्तलाफात का बीजेपी को फायदा हुआ। जम्मू कश्मीर के इंतखाबात पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, जम्मू में 29 नशिस्तों पर बीजेपी कामयाब हो जाती है और एक पर कांग्रेस को कामयाबी मिलती है। इस बारे में गौर करना चाहिए। ये हमको जो गाली देते थे लोग कि आपके खड़ा रहने से सब बीजेपी का फ़ायदा हो रहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, हम तो थे ही नहीं वहाँ पर, तो कैसे जीत गई बीजेपी। क्या क्या अनाप शनाप बोलते थे हमारे बारे में, ये टीम वो टीम। अब जब वहाँ पर बीजेपी जीत गई, जिम्मेदार कौन है इसका। और दूसरी अहम बात यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था, मगर लगता यह है कि उनके इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से उसका फ़ायदा बीजेपी को हो गया। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी को अगर आप ज़रा सा ही मौका देंगे इलेक्ट्रल बैटल में तो बीजेपी उसका फ़ायदा उठा लेती है। और आखिरी बात यह है कि 2024 के चुनाव के बाद भी और पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि जो लोग इसको कह रहे हैं कि ये बड़ी नफ़रत पे कामयाबी हो गई, मैं उस वक्त भी कहा था कि वो बात नहीं है। तो बीजेपी की ये कामयाबी को अब जो हो रही है अभी, इसके ज़िम्मेदार कौन है। निशाना नहीं है भाई, मेन अपोजिशन तो आप ही है वहाँ पर, मेन अपोजिशन तो ओवैसी थोड़ी है, मेन अपोजिशन आप ही हैं। और 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद 10 साल और फिर आपके हालिया पार्लियामेंट के चुनाव के नतीजे के बाद एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इनके पास कि बीजेपी को हरा देते वहाँ से, मगर वो नहीं कर पाए। इनका अपने इंटरनल डिफरेंसेस की बुनियाद पर, अपने एरोगेंस की बुनियाद पर। मेरा मानना ये है कि देखिए, मध्य प्रदेश में भी जीतना चाहिए था, छत्तीसगढ़ में भी जीतना चाहिए था, यहाँ पर भी जीतना चाहिए था। तो ये तीसरा ऐसा प्रदेश है जहाँ पर बीजेपी को हारना चाहिए था। असेंबली इलेक्शन बीजेपी जीत गई, तो ये ख़ुद एक बहुत बड़ा पैगाम देता है कि किस तरीक़े से क्या हो रहा है। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, हमारी पार्टी हमारे हम तो डिसाइड के नहीं लड़ेंगे, पर इतने बड़े लोग इस पार्टी के मुझसे भिजाए लोगों के आप चुनाव लड़िए, बोला नहीं लड़ेंगे हम अब चुनाव लड़ेंगे, अपनी तरीके से लड़ेंगे। तो ये तो ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और इनएफिशिएंसी इतनी ज़्यादा थी वहाँ पर, तब भी फ़ायदा नहीं उठा सकी कांग्रेस पार्टी। आपका क्या राय है? नहीं, एक्ट देखिए, एक्ट में तो है वो हमने 370 को अपोज किया। उसूलन अखलाक़न कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी डिमांड करती है कि जो भी सीएम होगा उसके ओपिनियन से, उनकी रजामंदी से आप अपॉइंटमेंट करिए। मगर एक अजीब व गरीब किस्म का एक्ट पास किया गया 370 का, जिसमें आपको एक मिसाल देता हूँ। कैबिनेट की मीटिंग होगी, उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट मीटिंग होगी, तो एलजी का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा उसमें और वो बताएगा एलजी को कि इसको कबूल करे ना करे। अगर उमर अब्दुल्ला कैबिनेट के मिनिस्टर को दिल्ली जाने का है, दिल्ली जाने का भी है, तो उसको एलजी से परमिशन लेके जाना पड़ेगा। एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर सकता सीएम वहाँ का। तो ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि कश्मीर के अवाम में जो गुस्सा था 370 को अबॉलिशन का, उन्होंने अपना गुस्से का इज़हार कर दिया। और फिर दूसरा ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो बोलते थे कश्मीर के बारे में, इलेक्शन तो हुआ, साफ़ सुथरा हुआ, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पूरे एक्ट को ही गलत मानता हूँ, इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में उसका वो खुलकर हमने उसका अपोज किया था कि क्या सीएम होगा उमर अब्दुल्ला, बताइए भाई। उसकी कैबिनेट में एलजी का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा और वो बैठकर रिपोर्ट करेगा कि जो डिसीजन एक्सेप्ट करे ना करे। अगर उमर अब्दुल्ला अपनी मंत्रियों को लेकर दिल्ली आना चाह रहे तो प्लेन में बैठ के ऐसा नहीं आ सकते, उनको एलजी से परमिशन लेके आना पड़ेगा। एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर पाएंगे, तो पूरा पावर तो एलजी के पास ही है। अब देखिए, ये तो बड़ी यानी गलत बात है ना। ये तो इलेक्टेड
जनता वोट डाल रही है और पूरे इख्तियारात एलजी को दे रहे हैं आप, ये कैसे होगा बताइए। बैरिस्टर ओवैसी ने त्रिपुरा के कड़मतला में मस्जिद और अक़लियतों के मकानात पर हुए हमलों और लूटमार की मजम्मत की। उन्होंने कहा अशरार ने कुरान पाक की भी तौहीन की। दुर्गा पूजा का चंदा न देने पर यह हमला किया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा इस तरह की शरपसंद कार्रवाई के लिए मुकामी हुकूमत जिम्मेदार है। अशरार को खुली छूट दी गई। सदर मजलिस ने जिम्मेदार अफराद की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। 3 दिन पहले त्रिपुरा कड़मतला एक मुकाम है, वहाँ पर कई माइनॉरिटीज़ के दुकानों को जलाया गया, लूटा गया और एक मस्जिद को बुरी तरह डैमेज किया गया, जिसमें ना सिर्फ जानिमाज़ों को जलाया गया मॉब की तरफ से, बल्कि वहाँ कुरान करीम को भी जलाया गया और एक टेंशन का माहौल है। दुर्गा पूजा के डोनेशन चंदा के लिए एक इंडियन क्लब नाम का एक ग्रुप है, जहाँ पर कोई उनको चंदा नहीं दिया तो पूरा एक मॉब जमा हो गया और उसके बाद से एक डेलिब्रेट मुस्लिम माइनॉरिटी के दुकानात को, उनके घर पर और मस्जिदों को टारगेट किया गया। मैं इसका कंडेम करता हूँ और इसकी ज़िम्मेदारी वहाँ की सरकार पर आयद होती है कि उन्होंने इस तरह के लोगों को छूट दे रखी है कि जो उनको चंदा नहीं देगा वो क़ानून को अपने हाथ में लेकर मस्जिदों पर और मुस्लिम माइनॉरिटी के दुकानों पर, घरों पर हमला करते हैं। इसका नोटिस लेना चाहिए और पूरे ज़िम्मेदार खातियों को फ़ौरन गिरफ़्तार करने की ज़रूरत है वहाँ पर। ये अभी तो खैर अभी उस दिन तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई, मस्जिद पे हमला हुआ। एक साहब अपनी फैमिली को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे, कोई इंडियन क्लब एक ग्रुप है जो उनको रोक कर पैसे पूछा, वो नहीं दिए तो उन पर हमला किए। फिर उसके बाद 2 तरफ लोग जमा हो गए, फिर मस्जिद पे अटैक हुआ, मस्जिद के अंदर सब हमला हुआ, बेहुरमती की गई मस्जिद की, दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया और ये सरासर नाकामी है वहाँ की सरकार की, बीजेपी की सरकार की। और एक डेलिबरेटली इस तरह से ये तमाम जहाँ बीजेपी पावर में है, ये मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के दुकानों को, मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है। तेलंगाना के सैलाब मुतासिन के लिए L&T कंपनी ने 5 करोड़ 50 लाख रुपए वजीर आला रिलीफ फंड में अतिया दिया है। सेक्रेटेरिएट में वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए L&T के सदनशीन सुब्रमण्यम ने अतिया का चेक वजीर आला के हवाले किया। इस मौके पर नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का के अलावा कंपनी के दूसरे अरकान भी मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर पी रवि ने कहा कि कृष्णा मादिगा दलितों की उम्मीदों को खत्म करने वाले शख्स हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही जुमराबंदी हो गई है, जश्न जैसा माहौल था, इसके लिए मोदी को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि कृष्णा मादिगा के पीछे बीजेपी है, रेवंत रेड्डी को धोखेबाज कह रहे हैं। मादिगा मोदी को कुछ नहीं कहते, जबकि पार्लियामेंट में बिल तक पेश नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि SC जुमराबंदी अगर हुई तो कृष्णा मादिगा का असर खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दिसंबर के अंदर मादिगा तबके को 12% तहफुजात पर रियासत में अमल होगा। बीजेपी के रुकन असेंबली वेंकटराम रेड्डी ने कहा झीलों पर कब्जे से मुताल्लिक खुले मुबाहिस के लिए वो तनहा काफी हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था KCR, रेवंत रेड्डी, KTR से खुले मुबाहिस के लिए वो तनहा काफी हैं। अगर उनकी बात को गलत साबित करेंगे तो वहीं पर खुदकुशी कर लेंगे। रियासत में 30 कंपनियों का डाटा उनके पास है, तमाम सबूत पेश करने के लिए तैयार हैं। मौजूदा तरीके से झीलों की FTL और बफर जोन की मार्किंग करने के लिए 90 साल लग जाएंगे। 2014 से 2023 तक के हिसाब को सामने रखना है। इससे पहले कांग्रेस हुकूमत में हुए कब्जों पर क्यों बात नहीं की जा रही है। जियो 111 के हदूद में तामीरात को मुनहदम करने का अख्तियार नहीं है, लेकिन गरीब आवाम को मकानात को मुनहदम करने का इंतबा यह हुकूमत दे रही है। ओहदे से मुनफरद पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तश्कील अमल में आई है। लोकसभा की जानिब से जारी करता बुलेटिन के मुताबिक इस कमेटी में लोकसभा से 10 और राज्यसभा से 5 अरकान को शामिल किया गया। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के रुकन लोकसभा ईटेला राजेंद्र इस कमेटी के सदरनशीन होंगे। स्पीकर लोकसभा ने कमेटी के सदरनशीन के ओहदे पर उनके तकर्रुर का ऐलान किया। यह कमेटी इस बात का जायजा लेती है कि अवामी ओहदों पर फायज शख्सियतें अपने ओहदे से माली मनफियत के अलावा दीगर ज़राए से भी मनफियत हासिल तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि एक से ज़ायद ओहदों पर फायज रहते हुए हर तरह से मालियाती फ़वायद हासिल नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा करता है तो कमेटी शिकायत वसूल होने पर उसकी जांच करती है, खाती करार पाने पर कार्रवाई की जाती है।
हुकूमत ने धान की हुसूली से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेने 4 रुकनी काबीनी ज़िली कमेटी तश्कील दी है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर आबपाशी, अग़ज़िया व सिविल सप्लाइज उत्तम कुमार रेड्डी, वज़ीर IT तिजारत व उमर मुखन्ना श्रीधर बाबू, वज़ीर ज़राअत व मार्केटिंग नागेश्वर राव इस कमेटी के अरकान होंगे। हज 2025 के लिए तेलंगाना से 6,519 आज़मीन को खुराक के जरिए मुंतखब किया गया। मुंतखबा आज़मीन से कहा गया वो 21 अक्टूबर से पहले सेंट्रल हज कमेटी के नाम 1,30,000 रुपये की रकम जमा कराएं। रियासती हज कमेटी के सदरनशीन मौलाना खुसरो पाशा बयाबानी ने मीडिया के नुमाइंदों को ये बात बताई। उन्होंने कहा कि रियासत में 9,011 दरखास्तें मौसूल हुई थी, जिसके में जिमला 6,519 का इंतखाब किया गया। माबाकी 2,500 दरखास्त गुजारों को वेटिंग लिस्ट का इंतजार करना चाहिए। तेलंगाना के आज़मीन के अलावा हैदराबाद इम्बार्गेशन पॉइंट से मुल्क के दूसरे इलाकों के आज़मीन भी तरजीहात दे रहे हैं। रियासती हज कमेटी रियासती आज़मीन के अलावा दीगर रियासतों के आज़मीन जो हैदराबाद से सफ़रे मुक़द्दस के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए दरकार सहूलतें फराहम करेगी। रियासती हज कमेटी ने अर्ज़ मुक़द्दस में इमारतों के इंतखाब में शामिल करने मरकज़ी हुकूमत व सेंट्रल हज कमेटी से ख्वाहिश की है। इसके अलावा रियासती क़ादिमुल हुज्जात को सिर्फ रियासती आज़मीन के लिए मख्तस करने का मुतालबा किया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज़मीन हज के लिए बेहतर से बेहतर सहूलतों की फराहमी की ख्वाहिश की है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में अवामी मसाइल व शिकायत की समाअत करते हुए इसकी यकसई को यकीनी बनाया जा रहा है। रुकन असम्बली अहमद पलाला ने चारशंबे को सईदाबाद रॉयल टर्न कॉलोनी में सीवरेज लाइन, CC रोड और बॉक्स ड्रेन के मसाइल का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने इस मौके पर ओहदेदारों को मसाइल की यकसई पर जोर दिया। बलदी, बरकी और आबरसानी के ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने हिमायतनगर में मजलिस के पार्टी ऑफिस में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने 144 दरखास्त गुजारों में चेक तकसीम किए। इसकी मालियत 1,44,00,000 रुपए बताई गई है। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया। मुतालिका तहसीलदार इस मौके पर मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम जारी है। चारशंबे को रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने हल्के बहादुरपुरी के 291 मुस्तक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 2,91,33,750 रुपए बताई गई। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर हल्के के कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। अरबाब तरीक़त ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से शान रसूल सल्लम में गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाजी जलसा जुमेरात 10 अक्टूबर बाद मगरिब सालार मिलत ऑडिटोरियम उर्दू मस्कन में मुनक़िद होगा। तंजीम के जिम्मेदार मौलाना जुनैद पाशा खादरी ने बताया कि मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन साबरी जलसे की सदारत करेंगे। अमीर जामे मौलाना मुफ्ती खलील अहमद निगरानी करेंगे। जलसे से उलमा इकराम, मशाइख़ निज़ाम के खिताबात होंगे। उन्होंने अवाम से शिरकत करने की अपील की है। शौहर ने अपनी मुबैना बदउनवान बीवी की रिश्वतखोरी का पर्दाफाश किया है। तफसीलात के मुताबिक मणिकुंडा म्यूनसिपैलिटी में काम करने वाली डी दिव्या ज्योति के शौहर श्रीपत ने इंकशाफ किया कि उनकी बीवी रोजाना घर रिश्वत की रकम लेकर आया करती है। इस बारे में उन्होंने कई बार उससे टोका था और उसको लेकर दोनों में झगड़ा भी हुआ। श्रीपत ने रिश्वत की रकम जहां रखी जाती थी उसकी वीडियो बनाई और उसे मीडिया के हवाले किया, लेकिन अभी इस सिलसिले में दिव्या ज्योति की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है और न ही पुलिस या महकमे इंसदाद रिश्वत की तरफ से कोई कार्रवाई का आगाज हुआ है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। चंदानगर पुलिस स्टेशन के हदूद में सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर की मुश्तबा मौत का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक लिंगमपल्ली का साकिन सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर 37 साला मलादरी दोस्तों के साथ मैनोशी के बाद मुश्तबा हालत में फौत हो गया। मुतवफ़ी के जिस्मानी आज़ा पर ज़रबात के निशान पाए गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। पुलिस टीम को तलब किया गया। मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात जारी है। बताया गया कि दोस्तों में मैनोशी के दौरान बहस व तकरार के बाद हो सकता है कि यह वाक़या पेश आया होगा। तेलंगाना फूड सेफ्टी कमिश्नरेट की टीम ने फतेहनगर में वाक़े कोनार्टी में मिलावटी चाय की पत्ती की तैयारी को बेनकाब किया है।
फूड सेफ्टी कमिश्नर की प्रेस नोट के मुताबिक मिलावटी चाय की पत्ती तैयार करने के बाद इसे हैदराबाद के मुख्तलिफ टी स्टॉल्स को फरोख्त किया जाता था। मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर कोनार टी पर धावा किया गया। 300 किलो चाय की पत्ती, 200 किलो नारियल का पाउडर, 5 किलो लाल और नारंगी रंग के डब्बे, इसके अलावा चॉकलेट, इलायची और दूध के मसनूई फ्लेवर जब्त किए गए। इस सिलसिले में मजीद कार्रवाई जारी है। चादरघाट पुल से गिरकर एक शख्स हलाक हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त काचीगुड़े के साकिन अली की हैसियत से की गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम वाक़या पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया जा रहा है कि पुल के एक हिस्से में जाली टूटी हुई है और मुतवफ़्फ़ी वहीं से नीचे गिर गया। चादरघाट पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। पुल के उस हिस्से को जहां की जाली टूटी हुई थी बैरिकेड्स लगाकर बंद किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। सरकारी स्कूल्स तेलंगाना की तामीर नौ में अहम रोल अदा करें। DSE 2024 कामयाब टीचर्स को वजीर आला ने तकर्रुमनामे हवाले किए। हुकूमत का गला पकड़ने तक इसी तरह धोखा देगी। बहबूदी प्रोग्रामों के लिए रकम नहीं, मूसा नदी के लिए फंड्स मौजूद, KTR का इल्जाम। कांग्रेस हरियाणा में बीजेपी की 10 साल नाकिस हुक्मरानी का फायदा नहीं उठा पाई। शिकस्त के लिए कौन जिम्मेदार? सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। त्रिपुरा में मस्जिद और अक़लियतों के मकानात पर हमलों की मजम्मत। मुबैना बदउनवान बीवी की रिश्वतखोरी को शौहर ने किया बेनकाब।
मणिकुंडा म्युनिसिपैलिटी की डी के घर में छुपी रकम का वीडियो शौहर ने किया जारी। मिलावटी चाय की पत्ती की तैयारी का पर्दाफाश, भारी मकदार में मिलावटी अशिया जब्त। तेलंगाना फूड सेफ्टी कमिश्नरेट की कार्रवाई। चंदानगर में एक शख्स मुश्तबा हालत में फौत, जिस्म पर ज़रबात। और चादरघाट पुल से गिरकर एक शख्स हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।